which is the last chapter in physics. This is called as the waves. Okay. Now, what is there in a wave? The first and the foremost question what we are supposed to study is what is wave? So if somebody asks you, Bhaiya, what is wave? What will be your answer? Your answer is wave is a form of a distance. What does it do? It carries energy and it carries momentum. It carries energy and it also carries the momentum, right? So if it carries energy and momentum, does the particle also move? The question is, does the particle also move? No. The energy is carried from one place to another. The momentum is carried from one place to another in all type of the waves. Whether it is water waves, whether it is sound waves, whether it is light waves, whether it is any kind of the waves. So they carry the energy from one place to another. But what about the particles? They only vibrate about the mean positions up and down or sideways, but they do not move in the forward direction with the waves. Okay. Now, let us classify the waves. What are the classifications of the waves? The waves types, it is based on the medium I'm talking about. So if there are some waves which require medium for the transmission of the waves. So in that case, if it is medium is required, then we will study about the mechanical waves. Okay. If medium is not required, it's all the type of the light rays, ultraviolet rays, gamma rays, X-rays. So they don't require any medium. So this is called as what? This is called as the electromagnetic wave. Okay. Now there is a third type of the wave, that is if any matter is moving, whether it is electron which is moving fast or alpha particle which is moving fast. If you are moving fast, you're not at rest, right? So you have the wave property also. Anything which itself moves and exhibits the wave property in itself, it is called as the matter waves. Okay. Now, in class 11th, we will be all studying, all concentrations is on mechanical wave. In class 12, we'll be studying about the electromagnetic wave. In class 12th and 11th chemistry, it will cover the like matter waves. Okay, dual nature of matter वगैरह उसमें अपन लोगों को पढ़ना होगा. Right. Now, whenever I talk about the mechanical waves, there is one thing which is very, very important about it. What is that very one thing? That is, it needs medium for the propagation. The medium is required for the propagations. Why? Because I said wave is moving in the forward direction, but what about the particle? The particle is executing a simple harmonic motions. Oscillations वाले chapter में हमारा पूरा वही था. So what is it? What is it? So it will be traveling. The waves will be propagating and it will be executing what? It will be executing a simple harmonic motion. Mean position से ऊपर extreme में, फिर mean में, फिर नीचे extreme में, फिर बीच में. या फिर हो सकता है कि बीच में mean हो, इस extreme में जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर extreme में जाएगा, फिर बीच में आएगा. Right? So because the particle executing a simple harmonic motion, so what are the properties the medium should have? The medium should have the property of elasticity and it should also have the property of inertia. Right. Now, this is based on the type of the medium. I classified the waves. Okay. Now, what about the classification of the waves when I talk about the vibrations of the particles? So I have got two types of the waves. What are they? They are called as the longitudinal waves and the transverse wave. Now, what are the type of the waves which I call as the longitudinal waves? When I say that I have a longitudinal wave, the longitudinal wave, suppose I say it is propagating in this direction, the arrow mark para direction. What will happen to the particle which is executing a simple harmonic motion? It will go to one of the extreme, it will come back to the mean position, then again go to the second extreme and back. So the particles are vibrating parallel to the wave propagation. They are propagating parallel to the wave का propagation. जिस direction पे wave जाएगा, आपका particle का vibration भी उसी direction पे जाएगा. ठीक है. जब हम transverse wave की बात करते हैं, तो transverse wave भी इसी तरफ ले जा रहा है. लेकिन इसकी जो particle का जो vibrations होगा, the particles will vibrate up. The particle will go down, right? So it will go up, it will go down. So it is always making an angle of 90 degrees with the direction of the propagation of wave. Such waves are called as the
transverse wave. Okay, now once we know this, the sound wave is an example of the longitudinal wave. The strings vibration, it is an example of the transverse wave. Now whenever we have the longitudinal wave, we get alternate compressions and rarefaction. एक स्प्रिंग ले लो, इस स्प्रिंग को आप क्या करना है, इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करना, खींच के छोड़ दो, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, क्या होगा स्प्रिंग में, बोले क्या होगा स्प्रिंग के अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर आप देखोगे वो खींच के छोड़ोगे तो कई जगह क्या हो जाता है, स्प्रिंग फैल जाता है, वो रारेफ्रैक्शन है, कई जगह क्या होता है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है ना, जैसे पस 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 आ जाता है। तो ऐसे ही इसमें अपन लोग क्या बोलेंगे कि देयर इज कंप्रेशन, जहां फैल जाती है देयर इज कॉल्ड एज रारेफ्रैक्शन। सो alternate compression rarefaction, compression rarefaction, ये किसमें होगा, स्प्रिंग में होगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में होगा। स्प्रिंग तो स्प्रिंग में दोनों टाइप के वेव्स हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है। जहां हमारे पास में कंप्रेशन हो रहा है तो वहां हम क्या देखेंगे, वहां पर अगर अपन एयर की प्रेशर, गैस की प्रेशर की बात करें तो वो जो प्रेशर है जहां कंप्रेशन होता है वहां पर बढ़ गया, और जहां पर रैरेफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। डेंसिटी की बात करें तो जहां पर कंप्रेशन है वहां डेंसिटी बढ़ जाती है, जहां रैरेफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, राइट। तो अगर मैंने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, यानी मैं टाइम के साथ साथ अगर मैंने प्रेशर को अगर वाई एक्सिस में लिया तो प्रेशर कैसे कम होता है, बढ़ होता है, इसको हम लोग अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो साइनसॉइडल ग्राफ बनता है, ठीक है। अब यही चीज आ जाते हैं हमारे जो क्या बोलते हैं वो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होती है, तो पार्टिकल्स क्या होती है, पार्टिकल्स जब भी वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन पे वेव जाता है उसके परपेंडिकुलर, तो आप क्या करना, स्ट्रिंग को एक ऐसे देखो, ये हमारा स्प्रिंग है, इसको ऐसा लटका दिया ऊपर से नीचे, जब मैं ऊपर से ऐसे नीचे करके लगाऊंगी, ऐसा खींचूंगी ऐसा जोर से, तो क्या बनता है, ऐसा ऐसा खींचती हूँ तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे, वेव कैसे जाएगा, ऐसे, समझ गए। तो वेव नीचे जा रहा है, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांसवर्स, मतलब जिस डायरेक्शन पे वेव जा रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव बन गया। बात समझ में आ गई। तो जितना भी रस्सी, जैसे आपने आप बड़ी सी रस्सी लगा दी दो दीवारों के बीच में, उसको ऐसे पुल करके छोड़े, आपने देखा वो वेव्स पैटर्न बनता है। खैर वो स्टेशनरी वेव होता है, लेकिन जिस प्रकार से जो वेव पैटर्न बन रहा है, वेव पैटर्न जैसे अब अपन इसको ना वेव को जाने के लिए क्या करेंगे, बांधेंगे नहीं दोनों डायरेक्शन पे, अपने एक ही दीवार पे बांधना, दूसरा जो छोर होगा वो आपके हाथों में होगा, तो जोर से झटका मारो उसको खींच के, क्या होगा, उसमें एक वेव पल्स, इसमें एक वेव पल्स क्या करता है, ऐसे 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 सामने जाता है। तो देख रहे हो वेव्स कहाँ जा रहा है, सामने जा रहा है, और पार्टिकल्स जो उसमें रस्सी में है, जो स्ट्रिंग में है, वो क्या करता है, वो ऊपर नीचे करता है। तो ये एग्जांपल क्या है इसका, आपने देखा ट्रांसवर्स वेव कैसे कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने अभी सीख लिया कि भैया वेव्स कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या उनमें डिफरेंशिएशन की पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं वेव्स की बात करूंगी तो सबसे पहले उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जब पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो अपने मीन पोजीशन से कितनी दूरी तक चला जाता है, तो वो जो डिस्टेंस आपको बताता है कि किसी पल वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितनी दूर पर पहुंचा। हमेशा मैक्सिमम में नहीं जाता, हमेशा मिनिमम में नहीं रहता, ग्रेजुअली मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम जाता है। तो एक पर्टिकुलर वक्त पर वो पार्टिकल कितनी दूर ऊपर गया या नीचे गया या साइड में गया, यानी मीन पोजीशन से कितनी दूर गया, वो जो पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड एज the displacement. The maximum displacement that is called as the amplitude. देखो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, हम बार बार कहेंगे इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने इस टर्म को यूज किया था। तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है, दिस एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक पूरी वाइब्रेशन के लिए जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, that is called as the time period. Okay, and what about the frequency बच्चा, the frequency का मतलब the number of vibration per second, it is called as the frequency. अच्छा, अब आती है wavelength। अब wavelength क्या होता है, तो कोई भी दो पार्टिकल्स अगर सेम फेज में हो तो उस दौरान वेव कितना आगे बढ़ गया। देख पहले वेव मीन पोजीशन पे था, मीन से एक्सट्रीम में जाता है, एक्सट्रीम में जाकर के कहाँ जाता है, फिर से वो मीन पे जाता है, फिर उल्टे दिशा में चलता है, फिर यहाँ वापस पहुंच जाता है। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन
पार्टिकल का होता है, उतने समय में वेव कितना आगे बढ़ जाए। एक कंप्लीट वाइब्रेशन पहले पार्टिकल का होता है, ये ऐसे 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 करेगा, लेकिन उस दौरान मेरी वेव जितनी दूर पहुंच जाएगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दैट इज लैम्डा, और लैम्डा क्योंकि डिस्टेंस है तो इसको आप मेजरमेंट किस में करोगे, तो आप जो भी यूनिट डिस्टेंस का है उस पे करोगे, टाइम पीरियड को टाइम की रिस्पेक्ट पे करोगे, सीजीएस यूनिट्स पे कर लिया तो मीटर्स, और टाइम पीरियड का लिया तो दैट इज सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी का लिया तो वो हर्ट्ज, है ना, ये पता है सबको। अब बात आती है कि मेरी वेव की जो वेलोसिटी होती है, ध्यान रहे अगर मीडियम आइसोट्रोपिक है, ध्यान रहे पीयूष, ध्यान रहे, अगर मीडियम आइसोट्रोपिक है यानी डेंसिटी उसकी सब जगह सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, आइसोट्रोपिक मीडियम है मेरे पास, और इस मीडियम में वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट। मान लो कि मेरे पास स्टील है, एक स्टील का बहुत बड़ा सा रॉड है, 1 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर लंबा, लंबा सा रॉड है, तार है, जो भी है, अगर मैंने साउंड इसमें पास किया, ट्रांसमिट किया, साउंड उसमें ट्रैवल करेगा, और इस पर्टिकुलर मीडियम में साउंड की वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, 1400 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास होगी। अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ का फिक्स्ड है, हवा में मैं बात कर रही हूँ आपको, है ना, व्हाट इज द मीडियम, साउंड मेरा ट्रैवल जो कर रहा है, मैं जो बोल रही हूँ आप तक जो आवाज पहुंच रही है वो किससे जा रही है, तो बोले साउंड से जा रही है ना, तो साउंड जो जा रही है वो एयर में जा रही है, मीडियम कौन सा है मेरा, एयर में जा रहा है। तो अगर मेरा टेम्परेचर अभी एक जब मैं बोल रही हूँ उस दौरान तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना बेटा, तो उस समय में टर्म की जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स्ड होगी, यानी अभी क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से तो ज्यादा ही है, अभी कितना होगा 17-18 डिग्रीज होगा, तो 17-18 डिग्रीज में आपकी जो स्पीड है वो करीब करीब आपकी 340 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास होती है, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है इसलिए वो वैरी होता है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो रुक जाए। बात समझ में आई? वेव वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, और वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो आपको मैं यहाँ दिखा दूं, ये फॉर्मूला होता है V is equal to lambda into n, where lambda is what? Lambda is called as the wavelength, and what about n? N is called as the frequency. Lambda into that is frequency is called as the wave. So wave velocity is a constant, as I already told you. So what is the formula on which the wave velocity depends? The Newton gave us the formula. This formula is V, and that is equal to, that is elasticity of the medium divided by density. Elasticity of the medium divided by the density. So the two important factors which is required to determine the velocity of the sound is the elasticity of the medium and the density of the medium. Why elasticity? Why inertia? See, elasticity is a property which brings back the particles to the original positions. अगर elasticity नहीं रहा तो वो अपनी mean position से shoot out करेगा और क्या करेगा, वापस नहीं आएगा, तो इसलिए इलास्टिसिटी की जरूरत होती है। इलास्टिसिटी की वजह से ही वो पार्टिकल अपने कहाँ वापस आता है बच्चा, वो मेन पोजीशन पे बाहर बीच में वापस आता है। अब बात आती है कि सिर्फ बीच में आ जाए तो ऑसिलेट थोड़ा ना करेगा, ऑसिलेट करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, ऑसिलेट करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, इलास्टिसिटी की जरूरत होती है, तो सॉरी डेंसिटी ने उसकी इनर्शिया की जरूरत होती है। तो इसमें हम लोग इनर्शिया कैसे मेजर करेंगे, इनर्शिया ही तो ओवरशूट करेगा ना। देखो मीन पोजीशन पे आते आते वो इलास्टिसिटी की वजह से मीन पोजीशन पे पहुंच गया, अब इनर्शिया है तो इनर्शिया क्या करेगा, वो जितनी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी से लेकर के क्या करेगा, वो ओवरशूट कर देगा, कहां से, मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा कि मीन पोजीशन को पार कर जाएगा, पार, तो पार कर गया तो इसका मतलब नेक्स्ट एक्सट्रीम में पहुंचा वो, तो वो किसकी वजह से पहुंचा, तो बोले इनर्शिया की वजह से पहुंचा। तो यहाँ पर इनर्शिया का मेजर हम किस प्रकार से लेंगे, तो बोले डेंसिटी से, है ना, तो ये न्यूटन बाबा हमको ये फॉर्मूला हमको बता के चले, ठीक है। अब इस पे आज का मेन डिस्कशन जो आगे का लेक्चर है वो उसी के ऊपर पे है। अब वेव फंक्शंस की बात करते हैं। देखो अभी मैं पूरा वेव्स के बारे में बात करूंगी, तो मुझे जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ा रही थी तो अब बता रही थी कि वह सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस ले रहे थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ले रहे थे। तो यहाँ जो वेव जो ट्रैवल करता है सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी है, ये तो वेव्स के बारे में। तो वेव्स क्या कर रहे हैं, सामने जा रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, तो मुझे दोनों बातों को लेकर के एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि वेव कहाँ और कब पहुंचा,
कितनी देर में कहां पर पहुंचा, ये दोनों बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूंगी पार्टिकल का, तो यहां पर बेसिकली दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो y इज इक्वल टू x, t। तो t बोलता है कि टाइम बता रहा है, x बता रहा है डिस्प्लेसमेंट कितनी देर के बाद कहां पहुंच गया, क्योंकि वेव तो आगे बढ़ गया ना, तो आगे कितनी दूर में बढ़ा और उतने समय के बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, अपनी मीन पोजीशन से कितनी ऊपर पे है, कितना नीचे पे है, मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पे है, ये पूरी जानकारी देगा। तो अगर अपन बोले तो वेव की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है और आपका डिस्प्लेस पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है यहाँ पर एक्स और टी, वी इज अ कांस्टेंट, व्हाई? बिकॉज जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी हमारी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो सिंपल हार्मोनिक वेव फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो वेव की जो फंक्शंस होगी y is equal to x, t and that is equal to a sin omega t plus kx plus phi. What is this omega? Omega is the angular frequency, which I know that is equal to 2 pi by t, and k is a wave number. This is a new thing which is to be introduced. So what is wave number? It is a number. So it depends upon 2 pi divided by lambda. So इसका जो function है that is the wavelength है. So wavelength and phi क्या है? Phi is the initial phase. मैंने कहा ना initial phase कहाँ से particle शुरू होती है, right? This is all about what we have about the waves, and today we will be discussing about the wave की velocity, or basically we will discuss about the sound, right? Okay.